What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 9th of June and today was Nifty's weekly expiry. And today's price action looks like the exact mirror image of yesterday's price action. Yesterday, the market opened with a gap down, saw an intraday rally, and towards the end of the day, the markets got sold into and the markets exactly closed where they opened. And today, exact opposite. The markets opened with a gap up somewhere around 23,250. Intraday, the markets got sold into and towards the end of the day, the markets again rallied, closed at somewhere around 23,250, exactly where they opened. Even if you look at the charts, you can notice that today's price action is the exact replica mirror image of yesterday's price action. And to talk about the straddle lost a massive 60-70 points worth of value overnight. And आज straddle 130 के आसपास open हुआ. And within the first 15 minutes, the straddle got crushed to 110. And after that, the markets almost traveled 150 points from the day's high to the day's low, and yet again the market spiked back to the day's high. So a total of 300 point swing, while the straddle's average value was somewhere around 100 rupees. And yes, there was a time in between where there was a decent amount of crush and all the short gamma and short wall players MTM kind of linearly increased, but towards the end of the session the calls exploded and then puts exploded. I think post 2 o'clock it's almost impossible to be making money from short wall side, and I'm not saying that it's easy for option buyers to be making money, but post 2 o'clock random moves left, right and center, it's kind of taking the liquidity from both the sides. Just to give you context, the call option, which was trading at somewhere around 3 rupees, shot up to all the way to 35 and it expired worthless. Similarly, the put option at one point, which was trading at 1 rupee, it made a high of 20 and again it expired somewhere around 6 or 7 rupees. So massive gamma post 2 o'clock, but there was a period of wall cool off where there was a linear kind of a crush for the option traders today, but there was a bit of volatility in today's markets. Of course, we didn't see the premiums spike 10 times in the morning session, but definitely post noon the gamma was so rampant that the option premium spiked 5 to 6 times on both the directions. And tomorrow is Sensex 1DT and the straddle is trading somewhere around 720, so most probably 650-660 के आसपास open होने वाला है, and looks like the market has formed a support somewhere around 23,100 because 23,100 के नीचे आज भी market जा नहीं पाया and 23,300 के ऊपर भी market जा नहीं पाया. So अगर gap up के साथ 23,300 levels को breach करता है, then probably tomorrow might be a day where we can see some amount of bullishness in the markets. But again, we don't know, there is always chaos from the geopolitical front. तो अगर आज रात को कुछ negative news आता है तो again we might be seeing a gap down. But let's plan for all the scenarios. Let's get to the terminal. So daily chart पे again ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं, तो we need a close above this 23,300 levels. 23,300 के ऊपर close मिलना चाहिए. Today the post noon bullishness was quite positive, quite optimistic. Yes, markets ने almost days high के आसपास close दिया है and towards the end of the session हमको एक bullish up move देखने को मिला है. So which means that there is a high probability that tomorrow the markets might open a gap up, and अगर 23,300 के ऊपर अगर sustain कर लेता है तो then 23,100 will be acting as some sort of a local minima, and यहाँ पे floor जैसे use करके यहाँ पे हम लोग थोड़ा पुट क्रेडिट स्प्रेड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं ऑन मंथली और बाई वीकली बेसिस. बेसिकली एट द मनी पुट्स को शॉर्ट करना है एंड 23,100 या 23,000 लेवल्स का पुट्स को बाई कर लेना है. सो इन दैट केस इट्स अ फिक्स्ड लॉस वाला जो ट्रेड बन जाता है, समथिंग लाइक दिस. ऐसे वाला ट्रेड्स को हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं. येस, डेबिट कॉल रेशियोज ऑल्सो लुक लाइक अ डिसेंट बेट बिकॉज आज के दिन यू कैन नोटिस दैट इंडिया विक्स हैज ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट 8.5%. कल ऑलमोस्ट 8%, 9% का स्पाइक देखने को मिला था इंडिया विक्स में. आज ऑलमोस्ट मिरर इमेज काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉलिटिलिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द स्पॉट प्राइस एक्शन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि yesterday we had a bearish pin bar, today we had a bullish pin bar. तो ऐसे जो bullish pin bar मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड ये जो bullish pin bar है इसका क्लोजिंग प्राइस है हमको चाहिए था somewhere about 23,300 levels. I mean in both the cases 23,300 के ऊपर मार्केट्स क्लोज नहीं दिया है. सो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल गैप अप ओपन होता है एंड कल एक ऐसे इंडिसाइसिव काइंड ऑफ अ कैंडल बन जाता है तो देन ये लो के नीचे 23,200 के नीचे ही हम लोग थोड़ा स्टॉप लॉस रख के थोड़ा एग्रेसिवली हम लोग बुलिश ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं. येस, प्रोबेबिलिटी कम है बट रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है. एंड लो टाइम फ्रेम पे अगर जाके बात करेंगे तो या एज आई वाज सेइंग एग्जैक्ट मिरर इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं.
exact mirror image of yesterday's price action. And yeah, for 100 rupees straddle, even this move, 150 point of down move and then another 150 point of up move, quite, the markets, as I'm constantly saying, we are in a negative VRP regime. कॉन्स्टेंटली हम लोग नेगेटिव VRP रिजीम में है, एंड दैट्स वाई आई कीप टेलिंग, अगर हमको रिवर्सल्स ढूंढना है, मेक श्योर दैट द मार्केट मूव्स एटलीस्ट व्हाट द स्ट्रैडल इज प्राइसिंग इन, एटलीस्ट ऑन एन एक्सपायरी डे. मतलब एक्सपायरी पे अगर 100 पॉइंट्स अगर स्ट्रैडल प्राइसिंग कर रहा है, पहले मार्केट को 100 पॉइंट्स ट्रैवल करने दो एंड उसके बाद हम लोग रिवर्सल्स के लिए ढूंढना है. तो रिवर्सल्स के लिए ढूंढने के लिए हमको ऑफकोर्स एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ढूंढना है. इट कैन बी CPR, इट कैन बी प्रीवियस डेज हाई और लो, इट कैन बी स्विंग्स और वट एवर, बट वो जो स्विंग्स को हमको ढूंढना है आफ्टर द मार्केट हैज ट्रैवल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, यूजुअली एटलीस्ट 1 टाइम्स द स्ट्रैडल प्रीमियम. दिस इज व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग. तो अगर मार्केट्स के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफी अच्छा एक सपोर्ट था, बट मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया. यस, ऑफकोर्स यहाँ पे एक छोटा सा एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, बट विद इन द नेक्स्ट मिनट इट एक्चुअली ब्रोक दैट कैंडल. बिकॉज कैसे है, एक्सपायरी डेज पे जो एल्गोरिथमिक फ्लोज जो है काफी हैवी रहता है. मैक्सिमम जो ऑटोमेटेड ट्रेड्स रहते हैं, दे आर ऑल देयर टू TBS काइंड ऑफ अ सिस्टम, टाइम बेस्ड स्ट्रैडल काइंड ऑफ अ सिस्टम्स को चलाता है, एंड पूरा मतलब इसका एक मिक्स मसाला बना के रखा रहता है. एंड उनका स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए उनका पूरा बेसिकली सम पीपल यूज 30% स्टॉप लॉस, सम पीपल यूज 100% स्टॉप लॉस, सम पीपल यूज अप टू 200% स्टॉप लॉस. तो इन सबका पहले स्टॉप लॉस खाना चाहिए एंड उसके बाद उस लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करके मार्केट ऊपर आना चाहिए. बिकॉज majority of the people are running pretty similar kind of the system. Yes, some people might enter at 917, some people might enter at 930, some people might enter at 945, but the flavor of their entire automated trading system is pretty much the same. सो यहाँ पे क्या हो जाता है कि फ्लोज जो है प्रेडिक्टेबल बन जाता है. तो इन सारे सब लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट्स कम से कम जितना स्ट्रैडल प्राइसिंग कर रहा है उतना मूव करेगा ही करेगा, एंड उसके बाद यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने का चांसेस रहता है. तो यस्टरडे अगेन आई वाज टेलिंग कि अगर स्ट्रैडल ऑन 1DT, लेट्स से स्ट्रैडल 1DT पे अराउंड 250 पॉइंट्स अगर ट्रेड कर रहा है, तो वेट फॉर एटलीस्ट 150 पॉइंट्स ऑफ इंट्राडे मूवमेंट. तो उसके बाद हम लोग रिवर्सल्स के लिए प्लान करेंगे. रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा वो सेकेंडरी है, बट 150 पॉइंट्स के अंदर ही आप जो उसके पहले अगर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है वहां पे आप लोग मार्केट का रिवर्सल देखने के लिए ट्राई करोगे और रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए ट्राई करोगे, देन देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल गेट चॉप्ड आउट. ठीक है, ऑल दैट सेड, अगेन टुमारो सेंसेक्स 1DT है, एंड या अगेन सेंसेक्स का जो स्ट्रैडल है ऑलमोस्ट लीनियर तरीके से क्रश देखने को मिला है पोस्ट 12 o'clock, बिकॉज 12 o'clock के आसपास मार्केट्स ने बॉटम बनाया एंड वहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडीली ऊपर आता गया. येस, इट वॉज अ लिटिल रैम्पेंट कंपेयर टू द एक्सपायरी डे लो प्रीमियम बेस, बट नॉर्मल तरीके पे लाइक 150 पॉइंट ऑफ मूव इन लेस देन इन ऑलमोस्ट 3 hours, नॉट सच अ बिग डील एट ऑल. सो ऑलमोस्ट 880 से लेके 720 तक 140 पॉइंट का प्रैक्टिकली एक ऑलमोस्ट लीनियर काइंड ऑफ अ डीके देखने को मिला है. इसमें से डेल्टा हेजिंग कॉस्ट को हम लोग निकाले तो भी हमको एटलीस्ट 60 to 70 पॉइंट्स हम लोगों को कैप्चर करने के लिए मिल जाना चाहिए ऑन सेंसेक्स. बट अगेन ऑन 1DT, यस, यू विल गेट लाइक 2 or 3 बैक टू बैक डेज वेयर यू कैन सी दैट ओ लीनियर क्रश आ रहा है, बट देयर विल बी वन डे वेयर मार्केट्स बहुत ज़्यादा डेल्टा मूव भी करेगा एंड देन देयर विल बी एन IV स्पाइक एज वेल वेयर इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 4 days वर्थ ऑफ प्रॉफिट्स. सो दैट्स वाई आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन दैट 1DT में या 2DT में generally delta neutral trades, especially in a negative VRP regime, it is practically stupid to be trading those things. Yes, बीच में आपको पैसा मिलेगा if you can actually predict what kind of a day it's gonna be, but doing that day in and day out, हर बार आपको सही तरीके से predict करना almost impossible हो जाता है. There will always be a day where you'll get stuck. ठीक है, so tomorrow 727 most probably 650 के आसपास straddle खुलने वाला है, which leaves us about 80 to 100 points of potential crush. So again, as I'm saying, no point trading purely delta neutral trades tomorrow. Wait for प्राइस एक्शन, एंड वहाँ पे आप लोग थोड़ा स्क्यूड स्ट्रैडल्स या स्क्यूड स्ट्रैंगल्स आप ले सकते हैं, बट सिस्टमैटिकली लेट्स से 915 पे आया, 916 पे आया, 920 पे आया, वहाँ पे मैंने स्ट्रैडल ठोक दिया, स्ट्रैंगल ठोक दिया, 20-20 रुपए का ऑप्शन कर लिया, 30-30. डोंट डू दैट बिकॉज यू विल नॉट मेक एनी मनी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द कॉस्ट्स. ठीक है, तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स की अगर बात करेंगे तो लेट्स लुक एट वेयर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आर. तो थोड़ा जूम आउट करने से हमको पता चलता है कि लाइक यहाँ पे दिस एरिया looks like it is a place where market has reversed multiple times. You can see that like multiple bar touch points यहाँ पे है. Of course
for a brief 15-20 minutes the market has traded above that, but considering where we are at this point 74,000 के आसपास सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है and this is 74,500, so 500 points जो हमारे पास स्पेस है, आई वुड स्टिल कंटिन्यू कंसिडर दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। यहाँ पे मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ प्रोवाइडेड द मार्केट ओपन्स समवेयर बिलो 74,100। 74,100 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, मतलब फ्लैट अगर मार्केट खुलता है, तो देन इफ द मार्केट ट्रैवल्स टू 74,500, डेफिनेटली अ गुड प्लेस, अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी इफ यू टेक अ मीन रिवर्शन ट्रेड हियर यहाँ पे। बट लेट्स से अगर कल गैप अप खुल जाता है, लेट्स से 73,300 73,400 के आसपास अगर खुल जाता है, तो देन मेरे लिए मीन रिवर्शन पॉइंट बनेगा ये 73,800 लेवल, बिकॉज एज आई सेड इंट्राडे में एल्गोरिथमिक फ्लोज बहुत ज़्यादा है एंड ना मार्केट्स ट्रेंड फॉलोअर्स को कंसिस्टेंटली पैसा देना चाहता है, ना मीन रिवर्टर्स को। दैट इज़ वाई यहाँ पे बेसिकली हमको वेट करना पड़ेगा कम से कम 400 से 500 पॉइंट मार्केट्स मूव करने के लिए, बिकॉज एज आई सेड 650 रुपीज़ का एक स्ट्रैडल कल खुलने वाला है, तो एटलीस्ट 500 पॉइंट्स मार्केट्स को मूव होना देना चाहिए एंड उसके बाद हम लोग देना चाहिए। रिवर्सल्स के लिए ढूंढना पड़ेगा। लेट्स से 300 पॉइंट्स के आसपास अगर मार्केट्स रिवर्स कर देता है, इट्स ओके, it's not for us, let's leave those days, because 8 out of 10 days markets जितना स्ट्रैडल प्राइस इन कर रहा है उसके आसपास मूव कर ही रहा है। देर आर ओनली 2 days वेर यू नो मार्केट्स लेट्स से 600 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है, मार्केट्स 300 पॉइंट रेंज के अंदर रहने वाला है। तो ऐसे 2 दिन के तलाश में ना 8 बार हमको लॉस नहीं लेना चाहिए। सो दैट इज़ वाई अगर बड़ा गैप अप खुलता है 74,300 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, तो देन मेरा मीन रिवर्शन पॉइंट बनेगा समवेयर अराउंड 74,900। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो देन मेरा मीन रिवर्शन पॉइंट बनेगा ये। नाउ अगर थोड़ा सा छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज लाइक अ कप एंड हैंडल काइंड ऑफ अ पैटर्न फॉर्मेशन, राइट। तो अगर यहाँ पे ओपन होता है, इस जो लास्ट 30 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन बना है, इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है एंड 10 o'clock के पहले ऐसे ब्रेकआउट मिलता है, तो देन डेफिनेटली वी शुड बी ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। यस, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैपिंग की चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे कल के जो या परसों के जो क्लोज है वहाँ से मार्केट रिवर्सल करने का चांसेस ज़्यादा है, बट वी हैव टू बी विलिंग टू टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क। यहाँ पे ये रिस्क लेना बनता है, बिकॉज प्राइस एक्शन के हिसाब से द मार्केट्स हैव गिवन अ गुड क्लोज, स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। फाइनल आवर में जो है बाइंग प्रेशर आया है। सो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इट्स एक्चुअली अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर गैप अप खुल जाता है, तो ऑब्वियसली ये इतना जो पॉइंट्स है, इतना हम लोग कलेक्ट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। एट दैट पॉइंट द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर अस दैट वी शुड बी लुकिंग फॉर इज अ मीन रिवर्शन ट्रेड, स्पेशली आफ्टर लेटिंग द मार्केट्स ट्रैवल समवेयर बिटवीन 400 to 500 पॉइंट्स, ठीक है। बट यहाँ पे अगर ओपन होता है, आई फील दैट इट इज़ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो लेवल है, ये जो नेकलाइन है, उसके नीचे मार्केट्स कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर इसके नीचे अगर मार्केट 5 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है, तो देन हमारा एंटायर ट्रेड आइडिया जो है, हाइपोथेसिस जो है, वो इनवैलिडेट हो सकता है, बिकॉज इसके बाद मार्केट्स थोड़ा बहुत चॉपी होने का चांसेस ज़्यादा है अगर वापस कल के जो आज का जो रेंज के अंदर मार्केट फंस जाता है तो, ठीक है। एंड या टुडे हैज़ बीन अ डिसेंट एक्सपायरी, not the trickiest of the expiries, but post 2 o'clock, yes, the gamma was rampant. And if you have got a way to actually manage these kinds of moves, if you are making consistently good profits after 2 o'clock, let me know आप क्या special कर रहे हैं, because I would also want to learn from you guys, ठीक है। I'll see you after tomorrow's trading action. Till then, take care, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.